Hey guys, assalamu alaikum and welcome back to my channel after a long period of time. I'm sorry I was being away because I was busy with some stuff. So now I am back and I will be uploading content again in short intervals. So as you guys, many of you were requested about my hair care routine on my Instagram. I have created a poll, so most of the people wanted to know about my hair care routine. So I thought, why not to just film a video explaining all the stuff I do with my hair. So without further wasting our time, let's just get into the video. So now, first of all, what's the most important and what's the most basic thing you can do to your hair is oiling. Oiling is really very important for your hair. You should oil your hair at least twice a week. This is what I do. I try to oil my hair like at least once in a week, but you should be doing it twice a week or even thrice a week, whatever suits you. But you should oil your hair. Some people are like that we don't oil our hair, I wouldn't like oiling our hair, but नहीं, आपके बाल जो हैं वो वॉश आप करते हो रेगुलरली, तो वॉश कर करके वो ड्राई हो जाते हैं, उनके अंदर से जो उनकी ड्राई न्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट वो ड्राई हो जाते हैं. तो आप शैम्पू अगर रेगुलरली यूज़ कर रहे हो तो यार वाई नॉट टू ऑयल योर हेयर. सो ऑयलिंग बिफोर एटलीस्ट 2 hours बिफोर यू टेक शावर. ठीक है, इस 2 घंटे पहले आपने जो है ना शावर से ऑयल कर लेना होता है. ये नहीं कि आपने अभी लगाया एंड यू जस्ट वेंट टू टेक द बाथ, ऐसा नहीं है. यू एटलीस्ट नीड 2 hours. ठीक है, आपके बालों में ऑयल को एब्जॉर्ब होने में एटलीस्ट 1.5 to 2 hours लगते हैं. उसके बाद आप नहाइए. ठीक है, जो मैं करती हूँ, मैं नहाने से 2 घंटा पहले या फिर मुझे ज़्यादा टाइम मिले तो मैं इससे भी ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं टाइम लूँ, कि मैं उससे भी ज़्यादा टाइम जो है वो अपने बालों पे तेल को लगा रहने दूँ. बट फॉर एक्नी पेशेंट जिनको एक्नी होती है उनके लिए 2 hours मैक्सिमम होता है, क्योंकि वो ऑयली एब्जॉर्ब होता है तो वो आपके स्किन में थोड़ा सा करता है. ठीक है, सो फर्स्ट इज द oiling. So now what I use to oil my hair, first of all, nowadays I keep on switching my oils, the things I use for to oil my hair. First of all, आजकल what I'm using is this organic coconut oil. This is by Himani and this is 100% natural, like it claims to be, and it's really good oil. I mean, it absorbs really well, and I first of all I use this. Secondly, the best thing, this is actually a homemade oil. You can see the fenugreek seeds at the base. So this is the oil my mother makes. This is the oil my mother gave me. और ये बड़ी मेहनत से बनता है. इसको आपने इसका बनाने का तरीका I'll be writing in the description box, or maybe I'll be telling in another video. So you can search on the YouTube. There are many videos on how to make the fenugreek seed oil. This is, I have used the whole bottle and this is really helpful for your hair growth, for your hair like आपकी बालों की जो एक जान के लिए जो है ना वो वाकई this is it really helps and it really helped me. Fenugreek leaves are seeds का जो oil होता है is really good for your hair. उसमें मैं I do mix the castor oil. आपको सबको पता होगा castor oil is really important for the hair growth. अक्सर you might have seen people saying कि जी आप अपने eyelashes पे castor oil लगाएं तो उससे eyelashes grow करती हैं. This is truth. Castor oil is really good for your hair growth. तो उसमें आप जो भी oil आप बना रहे हैं ना उसमें you just mix the castor oil a bit. तो it really helps. Now what I use to wash my hair, which shampoos I use. So first thing is that I don't stick to a same shampoo for years and years. I keep on switching the shampoos. ठीक है, तो always whatever suits me, जो मुझे सूट करते हैं, अब by now I know कि कौन से शैम्पूज हैं जो मुझे सूट करते हैं, तो उसमें से I keep on switching. तो आजकल what I'm using is this one. This is a
C. Expel Hair Care Revitalizing Coconut Water Shampoo, and this is amazing, you guys. I have used this and I am just in love with it. Randomly मैंने ये लिया था, लेकिन I love it. ठीक है. Secondly, आजकल I'm using it, तो आप सबने यूज़ किया ही होगा. This is the L'Oreal one. This is a fall resist anti hair fall shampoo. This is also really good. मुझे ये सूट करता है. Now note कि हर किसी के बाल डिफरेंट होते हैं, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, तो आपको जो सूट करता है अब वो यूज़ कीजिए. लेकिन मेरा मेन कंसर्न ये है कि आफ्टर शैम्पूइंग योर हेयर यू शुड मस्ट बी अप्लाइंग द कंडीशनर इन योर हेयर. आपने कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करना है. ये नहीं है कि आप सिर्फ शैम्पू अप्लाई कर देते हैं और आप अपने बालों को कंडीशन नहीं. यू शुड ऑलवेज बी कंडीशनिंग योर हेयर. सम पीपल थिंक यार एक केमिकल्स इतना ज़्यादा हो जाए कि शैम्पू लगा लिया कंडीशनर भी लगाएं. नो 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 नो. कंडीशनर रियली हेल्प्स टू स्मूदन आउट योर हेयर एंड सॉफ्टन देम एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रेकेज. जो उसमें रफनेस होती है उसकी वजह से वो टूट रहे होते हैं ना, तो आपका कंडीशनर जो है वो उसको स्मूथ करता है, उसको सॉफ्ट करता है, जिसकी वजह से वो टूटते नहीं हैं. सो द कंडीशनर आई यूज़ इज़ दिस L'Oreal Elvive. This is the extraordinary oil nourishing conditioner. This is for dull dryness and all the stuff. I love it. I keep on switching my conditioners also. मैं डव के भी यूज़ करती हूँ. सो द सेकेंड वन, दिस इज़ ऑल्सो द वन जो मैंने अभी पहली दफ़ा ट्राई किया है, एंड दिस इज़ रैंडमली उठा लिया था. ये भी मुझे बहुत, दिस इज़ पामर्स की वैसे भी चीज़ें आई हैव ट्राइड. ये चीज़ें, इसकी पामर्स की चीज़ें वाकई में अच्छी होती हैं. सो दिस इज़ द पामर्स विद विटामिन ई ऑलिव ऑयल रिप्लेनिशिंग कंडीशनर फॉर एवरी काइंड ऑफ हेयर. ये मॉइस्चर रिच, और तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया. आई हैव यूज़ दिस मच, सो I can give a verdict about this. This is so good. You can try this. Like अगर आप नेचुरल के उसमें जाना चाहते हैं, this is Palmer's olive oil replenishing. This is really really good. I mean recommended. तो सेकंड चीज़ ये हो गई कि मैं क्या करती हूँ कि मैंने कभी, it's been years now कि मैंने खाली शैम्पू नहीं किया है. I always use conditioner. I always condition my hair. उसी से आपके हेयर में जो शाइन होती है, जो सॉफ्टनेस होती है, वो रहती है, वो जाती नहीं है. आप सिर्फ शैम्पू करते रहें दैट्स नॉट गुड फॉर योर हेयर. और उसको चाहिए होता है कि आप उसको जो है ना वो कोई सीरम वगैरह या कोई कंडीशनर दें. सेकंड थिंग इज़ दिस. ओके, फिर आपने बाल ऑयल कर लिया, आपने शैम्पू कर लिया, कंडीशन कर लिया. नाउ व्हाट आफ्टर दैट, व्हाट यू शुड डू इज़ यू शुड अप्लाई सम सीरम और हेयर मास्क. सीरम आई डू इज़ आई यूज़ अ पैंटीन वन ऑयल रिप्लेसमेंट. वो अभी that's not on my table. तो आप you can use any serum like जो आपको सूट करता हो. पैंटीन वाला कर सकते हैं आप, लिवॉन कर सकते हैं आप, कोई नेचुरल कर सकते हैं. तो you can use anything. That's what I do. Third, what I do is I take multivitamins. मतलब आप किसी भी फॉर्म में, you can take in the form of tablets or you can take in the form of the dissolvable, जो पानी में dissolve होती हैं tablets, वो भी. तो I take multivitamins. Multivitamins are not good just for your hair but also for your skin and for your body and the parts of your body, उसको प्रॉपर फंक्शन करने के लिए. वाइटामिन्स बेशक आप सप्लीमेंट्स ना लें, आप अपनी डाइट को इतना अच्छा रखें. आपकी डाइट रियली रियली अफेक्ट्स योर हेयर, योर स्किन एंड ग्रोथ ऑफ योर बॉडी. तो आप अपनी डाइट को इतना अच्छा रखें, इतना हेल्दी रखें कि वो आपकी जो है वो इन स्किन और हेयर ग्रोथ में हेल्प करे, नज़र आए. तो इट रियली हेल्प्स. दिस इज़ व्हाट माय पर्सनल एक्सपीरियंस इज़. अपना जोर रखें फ्रूट्स पे instead of snacking and junky. So it will really help for your hair to grow. One more thing which I want to tell you guys, that do not shampoo your hair every day. Some people office going, university going, जो कि रोज़ नहा रहे होते हैं, वो समझते हैं कि यार रोज़ शैम्पू करना भी ज़रूरी है. प्लीज़ डोंट शैम्पू योर हेयर एवरी डे. इससे आपके बाल वाकई में बहुत ड्राई हो जाएंगे. सो प्लीज़ try avoiding this. Try avoiding your shampooing your hair every day. This is what I will suggest you guys. This is what I do. So the next step is what we need, our separate comb. आपने अपना ब्रश, एक तो आप वाइट टूथ कॉम्ब यूज़ करें, दूसरा ये है कि आप अपना सेपरेट ब्रश रखें. ये नहीं है कि आप जो है वो पूरे घर में एक ही ब्रश पड़ा हुआ एंड एवरीबडी इज जस्ट यूजिंग इट. यू शुड नॉट बी डूइंग दिस. आपने अपना एक सेपरेट ब्रश रखना है. That is what I do, and this is for really important for your hair hygiene. Shh,
guys, use such kind of stuff least as possible. This is what I do. मेरा ये मतलब पड़ा ही रहता है. Straightener हो, curler हुआ, मैं even I just avoid using such stuff. और अगर आप यूज़ डेली बेसिस पे, आई डोंट थिंक ये ज़रूरत है. डेली बेसिस पे क्या ज़रूरत है यार? तुम लोग रोज़ स्ट्रेट कर रहे हो, रोज़ अपने बालों को इतनी हीट दे रहे हो, तो बेचारे बाल जो है वो, मेरे ख्याल में मेरे बालों में अभी तक जो शाइन की जो एक तो जेनेटिक्स होती है, बट द सेकंड थिंग इज़ जो अभी ये है कि मैंने इन चीज़ों को आज तक कोशिश की है कि मैं लीस्ट यूज़ करूँ. यू डोंट नीड दिस यार, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर हेयर. आप डेली बेसिस पे किसी ज़रूरत भी इसको यूज़ मत करें, आपके बाल डैमेज हो जाते हैं. अगर आप करते भी हैं तो पता है मैं क्या करती हूँ. दिस इज़ माई हेयर केयर रूटीन की बात हो रही है, तो फिर मैं क्या करती हूँ. अगर मैं शादियों पे भी मैंने अवॉइड करती हूँ कि मैं करूँ. वैसे मेरे वैसे स्ट्रेट है, लेकिन मैं कर्ल करना भी अवॉइड करती हूँ, बहुत कम. तो अब व्हाट आई डू कि मुझे इतना इस चीज़ का वो होता है यार कि अगर मुझे करना भी पड़ गया ना, मैंने कर भी लिया है, तो आफ्टर कमिंग बैक इमीडिएटली और द नेक्स्ट डे आई विल बी ऑयलिंग माई हेयर. बट डेफिनेटली स्ट्रेट और कर्ल करने के बाद मैं अपने बालों को ऐसे धोती नहीं हूँ. मैं उनको ऑयल करती हूँ, मैं उसको थोड़ा टाइम देती हूँ कि यार मैंने जो उसको हीट दी है, उससे जो चीज़ उसमें वो ख़राब हुई है, ये मेरे दिमाग का एक फितूर है यू कैन से. तो उसके बाद मैं उसको ऑयल करती हूँ, उसको टाइम देती हूँ, देन आई वॉश एंड कंडीशन माई हेयर. और इसको मैं हीट मतलब अगर आप करते भी हैं तो यू शुड बी यूजिंग अ हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रेज एंड स्टफ. सो मैं अवॉइड करती हूँ कि मैं इसको यूज़ करूँ, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आप अपने बालों को छोड़ दें और कि ये लंबे होने के लिए लंबे होते जाएंगे एंड दे विल नॉट गेट एनी स्प्लिटेंस. और ये ऐसा नहीं होता है. शुड बी रेगुलरली ट्रिमिंग योर हेयर. उसके बाद ही आपके बाल जो है ना वो शार्प और अच्छे दिखते हैं, और उसके बाद ही वो सही बढ़ते हैं. वरना तो वो चूंचे निकली में इतनी बुरी लगती हैं. दिस इज़ माई पर्सनल लाइक प्रेफरेंस कि आपके बालों की ट्रिमिंग रेगुलरली होनी चाहिए. जैसे ही लगे कि स्प्लिटेंस हो गए हैं, ट्रिमिंग करा लें. So guys, this is all for my hair care routine. This is what I do to keep my hair healthy and shiny. So आफ्टर ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपको बताई हैं, तो बेसिक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी. लोग कहते हैं यार शायद हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, हमारे बाल जैसे इस बंदी के बाल हैं, ये यूज़ करती है, उसके टांगों तक बाल हैं, हमारे भी टांगों तक हो जाएंगे. आई डोंट बिलीव दिस, क्योंकि ये सब कुछ दिस इज़ जेनेटिक बेस. बेसिकली जी जेनेटिक्स में होता है. आपके बालों को इतना लंबा होना ये सिर्फ इन चीज़ों से पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये चीज़ें टू कीप योर हेयर हेल्दी, शाइनी और खूबसूरत रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो कि आपको करनी चाहिए, जो कि आपका फ़र्ज़ है टू टेक केयर ऑफ़ योर एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी. सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडे. आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड यू गाइज लाइक दिस वीडियो. Please, if you like this, give this video a thumbs up, share it with your friends, subscribe to my channel and press the bell icon below so that you will get to know whenever I will upload a new video. I love you all. Thank you so much. Bye.